गुड इवनिंग सर। गोपानी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मोबाइल इसी, हाँ ठीक हूँ। मोबाइल इस तरह रखना है या इस तरह? हाउ आर यू सर? मोबाइल कैसे रखना है? ओके ओके, इट्स फाइन नाउ। अच्छा ठीक। So we are also on Facebook Live. हाँ। So अच्छा, people are also watching on Facebook Live. जी जी। Ramashankar, welcome.
नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते चंद्रा सर। नमस्ते नमस्ते। हेलो नमस्ते सर। बता दो बेटा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैम। So I welcome you all. So people are joining. Soon we will start. फोटो लेके भेजेगा उनके लगे दिखा सकते अरे रुका मजा लेवे मजा लेवे कर बता अब इसे थोड़ा थोड़ा मौका पाए तो ऐसे आप करते यार अभी बना खा लिए खाना Sir. Correct. Thank
we will start. People are joining. People are joining, and we are also on Facebook Live. People are also watching on Facebook. Kamalesh sir, shall we start? जी, अब शुरू किया जाए. Okay. I think just give me one. Okay, so I think we can start. People are joining, and some people are also watching on Facebook. So, but however, so we'll get more time. We'll start. So, first of all, on behalf of Satya Shodhak, I welcome you all for today's book discussion on broadly. I titled it as the neglected OBC leaders or our neglect. So whichever way you can translate in English. This is the book. Those who have not seen the book, you can see. Arun Narayana. Editor of the when I received this book from the Vinod, who is a friend of me, who is in Allahabad, and he was happily shared with me this book. And then when I saw this book, I immediately thought there should be a discussion on this book, because previously for 3 to 4 months, I was continuously organized lecture series on anti-caste Shudra intellectual traditions. In that lecture series, I almost organized more than 15 lectures on each individual OBC leaders, both from North India and South India, going beyond known figures like Pule, Narayana Guru, Periyar, and all. So in that lecture series also, we organized lectures on Jagdev Prasad and Ramswarup Varma and other eminent thinkers, leaders who have contributed to the emancipatory politics and liberation of the marginalized groups in this country. But however, if you see the social science research and humanities research in India, both in the institutions and outside the institution, there is a less literature and research on OBC communities. Though there is some emerging literature on Dalits and Adivasis, but largely OBC communities are not studied the way we supposed to study. And in terms of literature also, it's very less. This is my limited knowledge. But if you visit any university libraries and you don't come across more than 20 to 30 books or not more than 100 books on OBC communities, which constitute
50% of the population of this country. So that shows, a historical negligence of the OBC communities and their representation and their leadership and their contribution towards nation building. In that context, this book is very, very important for us to discuss. I feel though there are many, many books written by individual scholars, writers, activists, and this is one of the books which compel taking leaders from the OBC background. It's not that these leaders only contributed for the OBC communities. No, their vision and their contribution is much larger, going beyond OBC communities. This book also covers leaders from the South India to North India. And this is, I hope, this is the first volume of the coming 5 volumes that are going to come on OBC thinkers and leaders across India. And there are 25 articles written by both senior and young scholars on various individuals. I think Kamalesh sir will really present as a very detailed review of this book. So with this small introduction, I welcome editor of the book, Arun Narayana sir, for this book discussion, and Professor Kamalesh Varma sir. They are both important speakers and who are very known. Kamalesh sir is known both in academics and in the public domain. And Arun Narayana is very popular, working largely for the marginalized groups. And Kamalesh sir, Professor Kamalesh sir is head of the department in Varanasi, is working in a college. But his writings are well known. I think if you Google, if you check YouTube videos, you will come to know many videos, many writers. He has been contributing a lot, and his work on Kabir is well known and which is well received. And he has been working on other books published by the marginalized publication. And he also worked on different literary themes, Kavya Bhasha or Nagarjun ki Kavita, which is also very known within the literary and academic circle. And there are books also, and he continuously speaks on public platforms. And Kamalesh Varma sir works are very, very important for the new generation of scholars. And I thought he will be a right person to review this book and present a proper perspective to understand this book. And when I called him, he happily accepted. And on behalf of Satya Shodhak, I thanks once again Kamalesh sir. Thank you, sir, for our accepting our invitation. So we have in meeting also Arun Narayana, editor of the book. What we do is we will request Kamalesh Varma sir to introduce the book, and then we will go for the editor of the book to speak, and then we will go for the discussion part. And I would like to bring to your attention that we are recording this discussion, and we are also on Facebook Live. On Facebook, people are watching across India, even some of them in abroad. And audiences are from South India to North India, across India. So, but speakers, Kamalesh sir and the editor, since they are familiar with the Hindi, I think they will be speaking in Hindi.
I request audience to understand, but you can raise in questions in English. So you can also speak in English. You can comment. Language is not a barrier, but ideas are very, very important. With this note, I request Professor Kamalesh Varma sir to introduce the book, and then we will go for the next speaker. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोपानी जी। सत्य शोधक फेसबुक पेज पर आपने मुझे आज अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं डॉक्टर गोपानी जी का बहुत आभारी हूं। श्री अरुण नारायण ने इस किताब का संपादन करके और इस पूरी परियोजना के संयोजक श्री राकेश यादव ने इस पुस्तक को हमारे सामने प्रस्तुत करके यह अवसर हम लोगों को दिया है कि हम लोग आज नेपथ्य के नायक पुस्तक पर बात कर सकें। गोपानी जी, कुछ आवाजें आ रही हैं। Yes, I request, I am unmuting all, and please don't disturb, and please mute yourself. I am muting all. जी हाँ, गोपानी जी, मेरी आवाज जा रही है? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? Everyone, so it will be disturbing. So please try to understand. इस पुस्तक के बारे में कुछ जरूरी बातों को आपके सामने रखने का एक विनम्र प्रयास मैं कर रहा हूं। मुझे जो समय दिया गया है उतने समय में इस पुस्तक के बारे में सांकेतिक रूप से कुछ बातें रखी जा सकती हैं। पहली बात यह कि अरुण नारायण जी ने नेपथ्य के नायक शीर्षक दे करके 25 ऐसे नायकों को हमारे सामने लाने की कोशिश की है, जिन पर बातें या तो बहुत कम हुई हैं, या ढंग से नहीं हुई हैं, या हुई ही नहीं है। जैसे ज्योतिबा फुले के बारे में बात हुई है, लेकिन सरदार जगदेव सिंह के बारे में बातें नहीं हुई। जैसे सोनेलाल पटेल के बारे में उन्होंने यहाँ जो एक तरह से प्रविष्टि दी है, वह उनके योगदान को बहुत जल्दी उन्होंने यहाँ पर रेखांकित करने के लिए प्रविष्टि दी है। यह बहुत अच्छी बात है। सोनेलाल पटेल जी कुछ ही बरस पहले नहीं रहे इस दुनिया में, और उन्होंने उन पर एक अध्याय इसमें रखवाया है। तो कई लोग इसमें से ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, और कई ऐसे हैं जिन्हें हम लोग नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इन नायकों को हम लोग जान नहीं पाते? उसके पीछे कौन सी वे शक्तियां होती हैं या कौन सी प्रवृत्तियां होती हैं जिनके कारण हम इन नायकों को नहीं जान पाते? यहाँ दो बातें बहुत साफ तौर पर समझ में आती हैं। इस पुस्तक के पूरे ढांचे को अगर देखा जाए तो दो बातें बहुत साफ समझ में आती हैं कि इस उपेक्षा में जाति और जेंडर की भूमिका बहुत बड़ी होती है।
या तो ये नायक जाति के कारण उपेक्षित हैं या जेंडर के कारण, मतलब स्त्री होने के कारण उपेक्षित हैं। इस पुस्तक में 25 नायकों में 5 नायिकाएं भी रखी गई हैं, 20 नायक और 5 नायिकाएं। कोशिश की गई है कि जितने भी तरह के वर्गीकरण हो सकते हैं उन वर्गीकरणों को ध्यान में रखकर प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए। जैसे इसमें अभी गोपानी जी ने कहा कि उत्तर भारत के भी लोग हैं इसमें और दक्षिण भारत के भी लोग हैं। जैसे इसमें सोनेलाल पटेल हैं, अगर राम लखन चंदापुरी हैं, तो ज्योतिराव फुले भी हैं, इसमें एम करुणानिधि भी हैं, बीपी मंडल भी हैं। मतलब उत्तर और दक्षिण भारत के दोनों हिस्से से इसमें रखने की कोशिश की गई है। दूसरी बात कि इनमें हिंदू नायक भी हैं और मुसलमान नायक भी हैं। मतलब कि नायकों को चुनते समय इस बात का ख्याल किया गया है कि मुसलमानों के बीच से भी जो नेपथ्य के नायक हमें मिलते हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाए। हमारे समय के बहुत वरिष्ठ एक लेखक श्रीकांत जी का इसमें लेख है पीर मोहम्मद मुनीस पर। इसमें एक मुस्लिम स्त्री भी हैं, रुकैया सखावत हुसैन, बंगाल की। कोशिश की गई है, कुछ आवाज आ रही है बार बार, गोपानी जी, आवाज आ रही है बार बार, उसको बंद किया जाए तो अच्छा है। आपकी आवाज ऑफ है गोपानी जी। So I am muting everyone. So I once again I request, please unmute, mute yourself, because why you are again and again unmuting. Sir, please. मैं कह रहा था कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, हिंदू, मुसलमान, पुरुष, स्त्री, सब तरफ से नायकों को इसमें लेने की कोशिश की गई है। एक बात और है जिस पर इसकी भूमिका में चर्चा नहीं की गई है, और अभी गोपानी जी जो बात कह रहे थे उसमें भी कुछ बातें छूट रही हैं, हालांकि राकेश यादव ने इसकी चर्चा की है। इस किताब में बड़ी संख्या में तो पिछड़ी जाति के नायक हैं, लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो कहीं अनुसूचित जाति में हैं और कहीं पिछड़ी जाति में हैं। जैसे इसमें चकली ऐलम्मा है जो धोबी जाति से हैं। जैसे इसमें झलकारी बाई हैं जो कोरी जाति से हैं। अब ये जातियां अनुसूचित जाति में भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछड़ी जाति के साथ साथ दलित जातियों से भी इसमें प्रतिनिधि हमें मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि हम लोग यह समझ लेते हैं कि जब हम जाति के सवाल पर काम कर रहे हैं तो ऊंची जातियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें रुकैया सखावत हुसैन भी हैं। ये हुसैन है। मुसलमानों में जो ऊंची जाति होती है उन जातियों में से आने वाली हैं रुकैया सखावत हुसैन। नेपथ्य की आवाज जाति और जेंडर के आधार पर जहां जहां दबी हुई मालूम पड़ी है संपादक को, संपादक ने उन लोगों को इस पुस्तक में अपना पात्र बनाया है और कोशिश की है कि भारत की बहुसंख्यक आबादी में से जहां से भी दबे हुए स्वर मालूम पड़ रहे हों, जिन स्वरों को दबा कर रखा गया हो,
उन स्वरों को उभार कर हमारे सामने लाया जाए और एक अखिल भारतीय चरित्र इस पुस्तक का बन सके। इस पुस्तक को पढ़ते हुए हम लोग उन तमाम आवाजों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने समय की उन आवाजों से तुलना करके देख सकते हैं कि कैसे उत्पीड़ित समुदाय की आवाज को नेपथ्य में धकेलने की कोशिश की जाती है। किस किस तरह के इल्जाम लगा करके उन नायकों के महान कामों को छोटा बना दिया जाता है ताकि वे मुख्य धारा के इतिहास में दर्ज न किए जा सके। उनके कामों के बरक्स एक छोटा सा कलंक कहीं से लगा दिया जाता है। इसके प्रत्येक अध्याय में यह बात दिखाई पड़ेगी। जैसे हम लोग अपने जमाने के एक नायक के बारे में बात कर सकते हैं, लालू प्रसाद जी के बारे में। उनके सारे योगदान पर एक कलंक, घोटाले का कलंक ऐसा लगा दिया गया कि उनका सारा नायकत्व उसके पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक उनके योगदान पर विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि यह सब एक तरह की साजिश है, जहां हमारे उभरते हुए नेतृत्व को पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है। और ऐसी पुस्तकें इन्हीं दबी छुपी बातों को हमारे सामने लाती हैं और हमें बताती हैं कि हमें अपने समय के नायकों के बारे में फैलाई गई अफवाहों से भी सचेत रहना चाहिए और उन अफवाहों के आधार पर हमें अपने नायकों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके सामाजिक योगदान को ध्यान में रख करके उनका हमें मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने भारत के समाज में जिस तरह के परिवर्तन लाने की कोशिश की है, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। हम में से आप कई लोग जानते होंगे कि बिरसा मुंडा को जो सजा दी गई थी वो चोरी के इल्जाम की सजा दी गई थी और रांची के उसी जेल में रखा गया था जिस जेल में आजकल लालू प्रसाद जी बंद हैं। बिरसा मुंडा के नाम से ही वह जेल अब है। लेकिन बिरसा मुंडा का योगदान एक तरफ, अगर हम उनके योगदान पर बात करें तो आदिवासियों के बीच वैसा लीडर नहीं हुआ जिसने इतना बड़ा विद्रोह खड़ा किया था, लेकिन उस पर इल्जाम लगाया गया चोरी का और बहुत दिनों तक यही बात चलाई गई कि वह व्यक्ति एक चोर था। ऐसी किताबें हमें जागरूक करती हैं और इसकी भूमिका केवल यह नहीं है कि यह अतीत के प्रति जागरूक कर रही है, इसकी भूमिका यह है कि हमें यह किताब वर्तमान के प्रति भी जागरूक कर रही है और हमें अपने जमाने में हो रहे प्रयासों को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। जब जाति के सवाल उठाए जाते हैं तो दो तरह के प्रकरण होते हैं। अगर हम पौराणिक साहित्यों की तरफ ध्यान दें, किताबों की तरफ ध्यान दें, तो वहां भी जाति के सवाल हैं, लेकिन आप देखिएगा कि वहां पर जाति की श्रेष्ठता और जाति की निकृष्टता का सवाल है। जाति से जो श्रेष्ठ है उसके पक्ष में ढेर सारी पैरवी की गई है, तर्क दिए गए हैं। लेकिन जब जाति के आधार पर हुए उत्पीड़न की बात करने के लिए जाति के सवाल उठाए जाते हैं तो वही जो जाति के आधार पर श्रेष्ठ वर्ग है वह नाराज होने लगता है और कहने लगता है कि आप जातिवादी हैं। बात यह है कि जाति के आधार पर जब उत्पीड़न हुआ है तो जब मुक्ति के सवाल बनाए जाएंगे, मुक्ति के सवाल उठाए जाएंगे, तो उनमें भी जाति के सवाल को आना ही पड़ेगा। अगर जाति के सवाल को हम छोड़ देंगे तो हम जाति के आधार पर होने वाले उत्पीड़न से मुक्ति के उचित रास्ते नहीं तलाश पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है आप लोगों से कि कभी भी इस तर्क से पराजित नहीं होना चाहिए कि जाति के सवाल का मतलब जातिवादी होना होता है। यह एक गलत धारणा है। जब हम ऐसे सवालों को उठाते हैं तो वास्तव में हम किसी जाति के खिलाफ सवाल नहीं उठाते।
असली बात यह होती है कि हम जाति के आधार पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ सवाल उठाते हैं और इसका घालमेल नहीं करना चाहिए। अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करने का अधिकार सबको है और इसी प्रयास में ऐसी किताबें हमारे सामने आई हैं। एक और पक्ष है जिससे लड़ने की कोशिश यह किताब कर रही है। वह पक्ष यह है कि नेपथ्य के इन नायकों उनकी जाति के लीडर के रूप में प्रायः पेश किया जाता रहा है कि वे तो अपनी जाति के लीडर थे। जैसे अंबेडकर को बहुत दिनों तक दलितों के नेता के रूप में लोगों ने पेश किया, लेकिन आज जब दलित राजनीति बहुत आगे बढ़ गई, दलित समाज ने उसके लिए बहुत संघर्ष किया, भारत के बहुजन बौद्धिकों ने जब संघर्ष किया, तो आज अंबेडकर सर्वमान्य नेता के रूप में हमारे सामने है। भले लोग मन से न मानते हो, लेकिन आज अंबेडकर को एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है। लेकिन यह आसानी से नहीं प्राप्त हुआ है। बहुजन नायकों के साथ यह प्रायः ट्रेजेडी हुई है कि उन्हें उनकी जाति का नायक बना करके छोड़ दिया गया है। ज्योतिराव फुले एक खास जाति के नेता थे, संत गाडगे एक खास जाति के नेता थे, लेकिन अगर हम उनके प्रयासों को ठीक से देखें, हम उनकी योजनाओं को ठीक से समझें बूझें, तो हम पाएंगे कि उनका नेतृत्व एक अर्थ में अखिल भारतीय चरित्र रखता है। एक और कोशिश करनी चाहिए, नायकत्व को गढ़ना भी पड़ता है। आप याद कीजिए कि 1980 के पहले अंबेडकर को बहुत कम लोग जानते थे। 1980 के पहले अंबेडकर की तस्वीरें नहीं मिलती थी, मूर्तियां तो छोड़ दीजिए। प्रयास किया गया और अंबेडकर के नायकत्व को ऊंचाई प्रदान करने में दूसरी कलाओं का भी उपयोग किया गया, दूसरे माध्यमों का उपयोग किया गया, जैसे साहित्य का उपयोग किया गया, मूर्ति कला का उपयोग किया गया, चित्रकला का उपयोग किया गया, संगीत का भी उपयोग किया गया और बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं भी उनके नाम से बनाई गई ताकि अंबेडकर के विचारों को चारों तरफ से फैलाया जा सके। यह पुस्तक इसी तरह का एक प्रयास है। इसके लेखकों ने यह कोशिश की है कि जिन नायकों की वह बात करे, उसके कामों को एक व्यापक फलक पर सिद्ध करने की कोशिश करे। यह एक अच्छा काम हुआ है। अब जैसे इन वर्गों से आने वाले नायकों को अगर हम ध्यान से देखें कि उनके कामों की प्रवृत्ति क्या रही है, तो आप देखिएगा कि अपने अपने ढंग से इन सबने उत्पीड़न से मुक्ति की कोशिश की है। किसी ने हथियार उठाया है, जैसे तेलंगाना का जो किसान विद्रोह था, नरेंद्र कुमार दिवाकर जी ने इसमें लिखा है चकली ऐलम्मा के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि तेलंगाना का जो किसान विद्रोह था वह सशस्त्र विद्रोह था। नागार्जुन की एक कविता है कि लाल भवानी प्रकट हुई हैं सुना कि तेलंगाने में, कागज की आजादी बिकती ले लो दो दो आने में, लाल भवानी प्रकट हुई हैं सुना कि तेलंगाने में। तो ये लाल भवानी प्रकट हुई है, मन क्रांति प्रकट हुई है तेलंगाने में। चकली ऐलम्मा उसी किसान विद्रोह की एक नेता थी। स्त्री होकर सशस्त्र विद्रोह में शामिल होना और भी रेखांकित करने लायक बात होती है। पुरुषों की तुलना में यह अलग से रेखांकित करने लायक बात होती है।
अय्यम्मा की भी कोशिश क्या थी? उत्पीड़न से मुक्ति। और उत्पीड़न का आधार क्या था? तो जाति और जेंडर। तमाम उत्पीड़न के पीछे जाति और जेंडर भूमिका अदा करते हैं। और हमारे ये नायक या तो जाति के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे थे या जेंडर के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे थे। यह भी मुक्ति की कोशिश है। अंबेडकर ने जो कोशिश की वह भी मुक्ति की कोशिश थी और अपने ढंग से उन्होंने की। जो ज्योतिराव फुले कर रहे थे वे भी अपने ढंग से शिक्षा के माध्यम से कर रहे थे। जो रुकैया सखावत हुसैन कर रही थी वह मुसलमानों के बीच में रहते हुए लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रही थी। यह भी उत्पीड़न के खिलाफ काम कर रही थी। तो कैसे ये केवल किसी जाति के नेता हैं? कोई धोबी का नेता बता दिया जाता है, तो कोई माली का नेता बता दिया जाता है, तो कोई महार का नेता बता दिया जाता है और कोई खाली यादवों का नेता बता दिया जाता है। यह ठीक बात नहीं है। हम लिखने पढ़ने वाले जो लोग भी हैं, सोचने वाले जो लोग भी हैं, हम कोशिश करें कि उनके व्यक्तित्व को इस तरह से प्रस्तुत करें जिससे कि उनका अखिल भारतीय एक चरित्र हमारे सामने आ सके। यहाँ पर जो जोर दिया गया है वो ठीक ही जोर दिया गया है कि पिछड़ी जातियों के नायकों को सामने लाने की कोशिश। और अभी गोपानी जी ने परिचय देते हुए यह बात कही भी और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यह जो 52% की आबादी कही जाती है और संभवतः अगर नया आंकड़ा हमारे सामने आए तो यह 60 से 65% तक भी यह आबादी हो सकती है। इसके नायकों के बारे में एक तरह की चुप्पी है। ऐसा नहीं है कि इन जातियों के भीतर से नायक पैदा नहीं हो। अरुण जी के पास ढेर सारे लोगों के नाम हैं और वे सब अपने अपने ढंग के नायक हैं। तो कोशिशें बहुत हुई लेकिन उन्हें भुलाया भी गया उतनी ही तेजी से। इन नायकों ने अपना पूरा जीवन होम कर दिया। मैं फिर नाम लूंगा कि आज के जितने समझौता परस्त राजनीति है उसमें हमारे सामने लालू प्रसाद जी जैसे एक लीडर हैं जो आज जेल में। जिस तरह की राजनीति चल रही है, छोटा सा एक समझौता कर लें तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को काफी हद तक नष्ट किया है कि नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे। पता नहीं वो बाद में याद किए जाएंगे कि नहीं, भुला दिए जाएंगे। हम जगदेव प्रसाद के बारे में बात करें, बहुत उग्र नेता थे। जिस जमाने में लोग हिम्मत नहीं करते थे कांग्रेस के खिलाफ आगे बढ़ने की, उस जमाने में वो आगे आए थे और गोली मार दी गई थी और बहुत क्रूरता से, निर्ममता से उनकी हत्या की गई थी और यह सांस्थानिक सरकार के द्वारा कराई गई हत्या थी। तो ये लोग उभरते हैं, अपना जीवन होम कर देते हैं और भुला दिए जाते हैं। मुझे मालूम है कि नेपथ्य के नायक जो किताब आई है, इसके पीछे अरुण जी ने कितनी मेहनत की है, इसके पीछे राकेश जी ने कितनी मेहनत की है। दिन दिन रात रात इन लोगों ने मेहनत करके छोटे छोटे शहरों तक पहुंचकर इसके प्रचार प्रसार का काम किया है। जिसने भी यह किताब मांगी तुरंत उन्हें पोस्ट किया है। इन्होंने सस्ते से सस्ते में इन्होंने भेजने की कोशिश की है। मुफ्त प्रतियां इसकी बांटी हैं। कमाई क्या होगी? अपना पैसा डूबा होगा इनका, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। पुस्तकों से कोई कुछ कमा नहीं पाता है। लेकिन अगर हमारा समाज अरुण जी और राकेश जी के इस प्रयास का सम्मान नहीं करेगा तो ये भी भुला दिए जाएंगे, ये सारी कोशिशें भुला दी जाएंगी। तो जरूरत है कि हम उनकी कोशिशों का सम्मान करें और उनके बारे में हम जागरूक होकर के सोचें। मैं इस किताब में रामजी यादव के लेख के बारे में कहना चाहूंगा। रामजी यादव बनारस के ही रहने वाले हैं और उन्होंने एक बिरहा गायक के बारे में एक अध्याय लिखा है
नसुड़ी यादव के बारे में। मैं भी बनारस में रहता हूं और नसुड़ी यादव को मैं नहीं जानता था। बिरहा जैसी चीज में मेरी कोई रुचि भी नहीं रही कभी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उस व्यक्तित्व को उभारा है, मुझे याद आ गया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में कबीर का व्यक्तित्व विश्लेषण इसी तरह की ओजपूर्ण शब्दावली में किया है। और नसुड़ी के योगदान को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से रेखांकित किया है कि एक बिरहा गाने वाला व्यक्ति अपने समाज को जागरूक कर सकता है। वह बिरहा जैसी लोक गायन की कला के माध्यम से पौराणिक साहित्य की पुनर्व्याख्या कर रहा था। पौराणिक साहित्य में जहां जहां उसे प्रगतिशील ढंग से व्याख्यायित करने का मौका मिला, जहां जहां ब्राह्मणवाद पर चोट करने की गुंजाइश उसे दिखाई पड़ी, जहां जहां जाति के आधार पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मौका मिला, नसुड़ी यादव ने वह सब किया। यहां तक राम जी भाई परिचय देते हैं उनका कि कहीं कहीं तो लड़ाई हो जाती थी। नसुड़ी यादव के बिरहा को सुनकर वहां बैठे हुए लोग आक्रोशित हो जाते थे कि यह देखो किस तरह की बात कर रहा है, यह समाज की चली आ रही परंपराओं के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन नसुड़ी जीवन भर यह काम करते रहे। मैंने बाद में जब YouTube पर नसुड़ी के बिरहा को सुना, मैंने महसूस किया कि नहीं, सचमुच उस अनपढ़ आबादी के पास जाकर के, जो बिरहा में रुचि लेती है आबादी, जो जागरूक बहुत नहीं है, सामान्य ढंग से जीवन जी रही है जो आबादी, उस आबादी में जाकर काम करना कितना चैलेंज का काम है। लीडर केवल वे नहीं हैं जो राजनीति कर रहे हैं, लीडर केवल वे नहीं हैं जो पढ़े लिखे हैं, लीडर वे लोग भी हैं जो आम जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया है अरुण जी ने कि 5 खंडों में इस किताब को विभाजित किया है और 5 तरह के क्षेत्र उन्होंने चुने हैं, या 5 तरह के वर्गीकरण को उन्होंने इस किताब में जगह दी है और उसके अनुसार अपने नायकों को रखा है। जैसे उन्होंने सामाजिक संगठन बनाकर काम करने वाले 5 नायकों को रखा है, 5 महिलाओं को रखा है जो समानांतर रूप से अंतः संघर्ष कर रही थी। मतलब उनका नाम बहुत खुल के नहीं आया, पुरुषों के आगे उनका नाम आ भी नहीं पाता है, इसीलिए वो अंतः संघर्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने तीसरा जो वर्गीकरण किया कि जब देश साम्राज्यवाद से लड़ रहा था और साथ साथ सामंतवाद से भी लड़ रहा था, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान जिन नायकों ने ऐसा संघर्ष किया, उनमें से 5 लोगों को उन्होंने चुना है। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़िए तो लगता है जैसे कि उसमें जो नेता थे वो सब ऊंची जातियों के लोग थे, लेकिन यह किताब इतिहास में हस्तक्षेप करती है, कहती है नहीं, यह एक गलत अवधारणा है। आप सोचिए, बहुत साधारण बात है कि 65% आबादी अगर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेती तो कौन सा आंदोलन चल पाता। यह याद रखना चाहिए कि इस देश में अगर कोई भी बड़ा काम हुआ है तो उसमें पिछड़ी जातियों का योगदान रहा ही है। आज अगर भाजपा की सरकार बन गई है, आरएसएस की राजनीति मजबूत हुई है, तो इसमें भी पिछड़ी जातियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर यह आबादी किसी का साथ न दे तो वह कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए और आत्मविश्वास रखना चाहिए कि हम अगर खोजेंगे तो उसमें हमें मजबूत स्तंभ के रूप में ऐसे लोग मिलेंगे। इस किताब में कोशिश की है और स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों को तलाशा है। साहित्य और कला, रंगमंच, सिनेमा, खेल, ये भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां से माहौल बनता है, जहां से मूल्यों की तलाश की जाती है। इस क्षेत्र से 5 लोगों को इस किताब में रखा गया है और अंत में सीधे सीधे राजनीतिक लीडरों को रखा गया है।
राजनीतिक नेताओं को रखा गया है। अरुण जी ने जो संकल्पना की है कि हम धीरे धीरे करके कई खंड निकालेंगे, उन्होंने घोषणा तो कर दी है कि 100 खंड निकालेंगे, लेकिन 100 खंड आसान नहीं है। वो बहादुर शाह जफर का शेर है कि इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, इतनी जगह भी तो होनी चाहिए। उम्रे दराज मांग कर लाया था 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। फिर भी संकल्प तो लेना ही चाहिए कि हम बड़ा काम कर सकें। और अगर वे इस तरह के 10 खंड भी निकाल देते हैं, 100 खंड मैं नहीं कह रहा, 10 खंड भी निकाल देते हैं, तो यह बहुत बड़ा काम होगा। भारत का इतिहास इन नायकों के बिना चूंकि पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसी किताबें भारत के इतिहास लेखन में खाली स्थानों को भरने की कोशिश करती है। जो जगहें खाली रह गई हैं, खोखली रह गई हैं, पोपली रह गई हैं, समझ में नहीं आता है कि ये खाली जगह भरी कैसे जाएगी, किसे छिपा लिया गया है, किसे हटा दिया गया है। यह किताब वह सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि उन खाली जगहों को भरा जा सके। सब प्रमाण तथ्य यहाँ मौजूद है। एक बात से हमेशा हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि ऐसी किताबों को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं प्रचार करना चाहिए कि ये किताबें किसी के खिलाफ हैं। दरअसल ये किताबें समाज की अस्थाई मुक्ति के सवाल को लेकर आती हैं। अब मुक्ति की लड़ाई जब हम लड़ेंगे तो बंधन टूटेंगे। अब जिन लोगों को बंधन बहुत अच्छा लगता है उन्हें तकलीफ होगी, या जिन्होंने बंधनों को बांध कर रखने में अपनी भूमिका अदा की है उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसी किताबें किसी के खिलाफ नहीं होती हैं, ना किसी जाति के खिलाफ होती हैं, ना किसी धर्म के खिलाफ होती हैं। ये किताबें मुक्ति की कोशिश पर रहती हैं और किसी की भी मुक्ति की कोशिश का सम्मान किया जाना चाहिए। अंतिम बात कि हम लोग पिछले 2-3 दशकों से और पहले भी भारत के इतिहास में जब आजादी हमें मिली थी, सांप्रदायिकता की समस्या से हम लोग बहुत परेशान हुए। जब देश आजाद हुआ उस वक्त लोग परेशान हुए थे और पिछले कुछ दशकों से हम लोग परेशान हैं। कुछ लोगों के हिसाब से ये परेशानी नहीं है, ये अच्छा है। लेकिन देखिए, जातिवाद भी खराब है, सांप्रदायिकता भी खराब है। जातिवाद से लड़ने की एक कोशिश है ऐसी किताबें। जाति के सवाल को उठाकर हम जातिवाद से लड़ सकते हैं। जाति के सवालों को उठाने का मतलब होता है जाति के आधार पर होने वाले उत्पीड़नों को समझना, जाति के आधार पर होने वाले भेदभावों का इलाज खोजना। जब हम धार्मिक प्रश्नों की तरफ जाते हैं तो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। लेकिन जब हम सांप्रदायिकता के स्वरूप को देखते हैं ठीक से, तो सांप्रदायिकता करती क्या है? वो ढेर सारे काम करती है, उसमें से एक काम वह जरूर करती है कि आपसे कहती है कि अपनी जाति को भूल जाओ। तुम्हारी पहचान तुम्हारा धर्म है, जाति नहीं है, और तुम इसके आधार पर इकट्ठे हो जाओ। संगठन अच्छी चीज है, संगठन अच्छी चीज है, संघबद्ध हो जाना अच्छी चीज है। लेकिन ये बताइए कि हमारा बड़ा सच क्या है? हमारा बड़ा सच धर्म है,
या बड़ा सच जाति है। हम जिस तरह की सामाजिक जिंदगी जीते हैं उसमें धर्म की बड़ी भूमिका है या जाति की बड़ी भूमिका है। मैं दो उपन्यासकारों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने भारत के, उत्तर भारत के समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक प्रेमचंद का नाम लेना चाहूंगा और दूसरा फणीश्वरनाथ रेणु का नाम लेना चाहूंगा। आप इनके कथा साहित्य में जाति के सवालों को ही देख पाएंगे, धर्म के सवाल को नहीं देख पाएंगे। इन लोगों ने इस बात को अच्छी तरह पहचाना कि धर्म का सवाल उठाकर वास्तव में जाति के सवालों को दबाया जाता है और इसके माध्यम से जाति के आधार पर हो रहे उत्पीड़नों को दबाया जाता है या उसे चलाए रखने की एक कोशिश की जाती है। और आप जब जब मुंह खोलेंगे आपके सामने धर्म का एक गरिमामय रूप रख दिया जाएगा कि मंदिर बन रहा है, आप दान दे दीजिए। नेपथ्य के नायक जैसी फालतू किताब खरीदने के लिए 200 रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है, आप 1000 रुपया दान कर दीजिए, मंदिर बन रहा है और आप मंदिर बनेगा तो ज्यादा सुखी होंगे। ऐसी किताबें पढ़ करके आप कहाँ से सुखी होने वाले हैं। और हम में से कई लोग उस सवाल की तरफ चले जाएंगे जो हमारा सवाल है ही नहीं। हमारा सवाल असल में इन्हीं प्रश्नों के आसपास है जहां जाति के सवाल हैं। इसीलिए प्रेमचंद और रेणु जैसे लेखक जाति के सवालों को उठाते हैं। हम लोग उम्मीद करें और अपना सद्भाव रखें। हम अपनी मंगल कामनाएं अरुण नारायण जी के प्रति प्रकट करें, राकेश जी के प्रति प्रकट करें, डॉक्टर गोपानी जी के प्रति प्रकट करें कि ऐसी कोशिशें भविष्य में चलती रहें। मैं विनोद जी को भी याद करना चाहूंगा कि ऐसी कोशिशें चलती रहें और ऐसी कोशिशों को एक अंतरदेशीय इंटरनेशनल स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. It was very detailed review of the book, and so Professor Kamalesh sir introduced the book and also contextualized the book. So some of them might have understood what he spoke, but those who are from different states, if they are not able to understand, I will try to bring for 2 to 3 points for their understanding. This book edited by the Arun Narayana and consists of 25 articles written on 25 leaders, because some communities within the OBC communities in some states are considered as SC, in some states are OBCs. And Kamalesh sir rightly pointed out, Dobis in Uttar Pradesh, they are SAs, but in Andhra Pradesh and in Telangana, they are OBCs. Because it is only administrative categories, SC, BCs. But however, these leaders historically contributed to the liberative politics and fought against the caste, religious hegemony, fought against the oppression, exploitation. They have visualized new India where everybody will be treated equally. But however, because there are many leaders in this book, take for example Chandraiah Gopani. Though there is in Telugu, Bahujan communities, SC, ST, OBC communities are begun to discuss and document on Chandraiah Gopani. It has to yet to be written in English.
and known to the across India. So there are 5 women leaders which are documented in this book. Pulan Devi is also one personality, Savitribai Phule. But these struggles led by these women leaders coming from the OBC community, marginalized communities, clearly pose a question that there is a need to write women movements, the history of women struggles, a gender question from the lowest of the low. Because most of the times, unless you document, unless you properly engage, do research, the so-called mainstream documentation research will have a misinterpretation and also misdirecting the next generation of scholars. Therefore, it becomes important for the new generation of scholars who come from a marginalized communities to document properly and then analyze for the new generation of scholars, for future scholarship. In this, there are politicians also documented, like people like Karnanidhi, Karpuri Thakur, BP Mandal, Chaudhary Charan Singh, Jnani Jail Singh. So these are the leaders who have contributed and democratized the politics in India. I think there are many OBC leaders come from the Bihar. BP Mandal, Karpuri Thakur, Lalu Prasad Yadav, and Nitish Yadav. Whoever, there is a historical journey from the Uttar Pradesh, Bihar. But, and it is also for us to think, while Bengal and Kerala is considered to be a progressive states and projected in mainstream, you don't find a considerable OBC and marginalized Dalit leadership from these 2 states. While you will find a leadership from the Uttar Pradesh and Bihar. These are the states which are not considered feudal states. It is for us to understand why there is so much, many leaders from the Bihar who have contributed for the liberation of the oppressed communities. Why we don't see that kind of leadership from these so-called progressive states? Now that's where the life and struggles of the BP Mandal, Karpuri Thakur, and become very important. And this book is documented. And leaders like Jagdev Prasad is also very important, and we should know his life and struggle. And leaders like Lalai Singh Yadav from Uttar Pradesh, his contribution is very important. But only in North India, some people know it. But across India, we don't know. And in South India, people do not know much about Jagdev Prasad, Lalai Singh Yadav, and other Ramswarup Varma, Chaudhary Mara Singh Bharati. So therefore, what I'm trying to point out is these kind of works really help us to understand. And Chandrika Prasad Jignasu is in this book also. Chandrika Prasad Jignasu is also documented. In my little knowledge, Chandrika Prasad Jignasu contribution is very important for the Bojan perspective. I think Kanwal Bharati volumes, 4 volumes, really document that contribution. So if you read the Chandrika Prasad Jignasu life,
we will come to understand how in 1960s and 70s, even 50s, struggling to develop a Bosnian perspective. And he is the one in 1960 itself, in mid of the 60 itself, he established a publication called Bosnian Kalyan publication. So that shows their commitment to build the Bosnian perspective. They are not only leaders who contributed both in the politics, in the public domain, they were constantly written various literature. If you see the Chandrika Prasad Jignasu, I think he enormously written on Ravidas, on Ambedkar. He published Buddhist literature. So much of contribution. Pulan Devi. So there are many, and people know Savitribai Phule contribution. So in that way, there are sports people also from these communities. Danchan. So therefore, this book also tried to gather politicians, intellectuals, sports people, fighters, freedom fighters. So it is a combination of multi-talented, it is a combination of personalities coming from different field. And the aim of those personalities was to liberate these marginalized communities and democratize this Indian society and Indian politics. In that way, this book really important. And though it is in Hindi, I think there is a need to come up with in English so that it will helps a lot across India and even in abroad. So I'm sorry I took time, but Professor Kamalesh sir was speaking in Hindi, so I thought of to bring some points for other audience to know. And now I request Arun Narayana sir to speak, and then we will go for discussion. So how this book came, what was the aim to bring this book, what kind of efforts they have invested, what is their future plan, and so on. Arun Narayana sir, are you there? Hello? Hello? I'm just आपके द्वारा डायल किया गया व्यस्त है। हेलो। yes sir, please. हाँ, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया डॉक्टर गोपानी सर, सत्य शोधक, फेसबुक, चंद्रा साहब, आदरणीय कमलेश वर्मा सर, विनोद जी। मित्रों, कमलेश सर ने किताब के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ हम लोगों का जो सरोकार हो सकता था, हम लोगों की जो सोच जहां तक पहुंच सकती थी, उन तमाम पक्षों के बारे में रखा। मैं आपको बतलाऊं कि नेपथ्य के नायक किताब की परियोजना कोरोना काल में बनी थी और आरंभिक दिनों में हम लोगों ने यह सोचा था कि 100 नायकों पर एक किताब लाएंगे, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों का सम्यक प्रतिनिधित्व हो और जिस तरह से इस समाज को रचने गढ़ने में
लेखक की भूमिका होती है, एक राजनीतिज्ञ की भूमिका होती है, एक खिलाड़ी की भूमिका होती है, एक संगठनकर्ता की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है। लेकिन राकेश जी के सेवा अभियान के बाद और बहुत सारे मित्रों के परामर्श के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्यों नहीं नेपथ्य के नायक सीरीज को हम 25 नायकों के कलेवर में हर 3 महीने पर निकालें। तो यह तो एक रही बात नेपथ्य के नायक किताब की, नेपथ्य के नायक किताब के परिकल्पना की बात। लेकिन मित्रों, यह एक सच्चाई है कि भारत का जो समाज रहा है, जिस तरह की विविधता इस समाज में पाई जाती रही है, इस देश को रचने गढ़ने में इस देश के बहुसंख्यक समाज के लोगों का जो त्याग रहा है, समर्पण रहा है, बलिदान रहा है, उसकी उपेक्षा इतिहास के हर दौर में हुई है। और इस किताब को लाने के पीछे हम लोगों का यह उद्देश्य कहीं न कहीं रहा है कि जो लोग नेपथ्य में डाल दिए गए, हाशिए में डाल दिए गए, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को आज के परिप्रेक्ष्य में उठाया जाए। मैं समझता हूं कि यह हमारी पहली कोशिश है और अपनी इस पहली कोशिश में हमने बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत मेहनत के साथ इसको सामने लाया है और कोशिश यह रही है कि बहुजन समाज में जो हमारे नायक रहे हैं, ज्योतिराव फुले से लेकर सरदार जगदेव सिंह तक, तो जैसा कि कमलेश सर ने भी कहा कि यह अपने समाज के जातीय सवाल को नहीं उठा रहे थे। ज्योतिराव फुले जब सत्यशोधक समाज का सपना देख रहे थे, इस देश में लड़कियों की शिक्षा की बात कर रहे थे, सरदार जगदेव सिंह जब त्रिवेणी संघ गढ़ रहे थे, तो वह सिर्फ बिहार की कोयरी, कुर्मी और यादव जातियों का भविष्य नहीं देख रहे थे। उनके सामने यहाँ के किसान, मजदूर और कामगार थे। तो यह एक हम लोगों का दृष्टिकोण रहा है कि नेपथ्य के नायक के माध्यम से हम उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत का एक सम्यक चरित्र गढ़ें। इस पुस्तक की तैयारी में आप देखेंगे कि आप अगर एकेडमिक्स के तरीके से देखेंगे, अकादमिक जगत का अगर पैमाना लाएंगे इसके मूल्यांकन के लिए, तो आपको निराशा होगी। हमने कोशिश यह की है कि अकादमिक और जर्नलिस्टिक दोनों के बीच का जो पुल हो सकता है। और एक बात और कि इस समाज में बहुत सारे ऐसे नायक रहे हैं जिनकी आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। जैसा कि हमने इस नेपथ्य के नायक खंड का जो तीसरा अध्याय है, साम्राज्यवाद, सामंतवाद विरोधी संघर्ष के योद्धा, तो आप देखेंगे कि इस पूरी पुस्तक में हमने आधुनिक काल में 17वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के हमारे झारखंड के नायक हैं रघुनाथ महतो, जिन्होंने चुआड़ आंदोलन को जमीन पर उतारा। तो रघुनाथ महतो से लेकर के 2018 में दिवंगत हुए जी करुणानिधि तक हमारे नायकों का काल है, आधुनिक काल। 1700 से लेकर के 2018 तक का काल।
और इस काल में आप देखेंगे कि ज्योतिराव फूले हैं, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सरदार जगदेव सिंह हैं, जिनके नेतृत्व में 1930 के दशक में बिहार में त्रिवेणी संघ का गठन होता है। आप देखिएगा कि उसी त्रिवेणी संघ के एक बड़े सिपहसालार हैं चुल्हाई साहू, उनके जीवन संघर्ष को हमने लाया है। रामलखन चंदापुरी हैं, जिनके नेतृत्व में खास करके बिहार में पिछड़ी जातियों के उत्थान की कोशिश होती है और जिनके प्रयत्नों से भीमराव अंबेडकर पटना आते हैं और यह कहा जाता है कि संविधान की अनुसूची में जो पिछड़ी जातियों के लिए संविधान आरक्षण की बात हुई, उनकी कोशिशों का प्रतिफल थी। तो यह हमारी एक कोशिश रही है। इस कोशिश में मैं कितना सफल हुआ हूँ, यह तो आप सुधी दर्शक बताएंगे, लेकिन भारतीय समाज में जो जातीय नस्लीय दुराग्रह काम करते रहे हैं, वही एक ऐसा बिंदु है जिसने साजिशन इस तरह के नायकों को हमेशा हाशिए पर रखने की कोशिश की। हम आजादी के दिनों के समाज को याद करें, स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष को याद करें, तो दो चीजें मुझे साफ-साफ नजर आती हैं। एक राजनीतिक मंच पर हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, गांधी हैं, नेहरू हैं। तो 1930 के दशक के बाद से हिंदी समाज के जितने लीडर थे, जाति के सवाल को अपने-अपने तरीके से एड्रेस कर रहे थे। उनमें मत भिन्नता थी, लेकिन समानता यह थी कि ये सभी के सभी नेता जाति को भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा दुर्गुण मानते थे और उनकी यह मान्यता थी कि जब तक जाति नामक व्याधि की समाप्ति नहीं हो जाती, भारतीय समाज का विकास नहीं होगा। लेकिन इसके उलट जब हम हिंदी क्षेत्र में साहित्य की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, सिनेमा की बात करते हैं, तो हमें वही तस्वीर नहीं मिलती है जो राजनीतिक पटल पर जाति के सवाल को लेकर जिस तरह से नेहरू एड्रेस कर रहे थे, गांधी एड्रेस कर रहे थे, अंबेडकर एड्रेस कर रहे थे। आप देखिए कि साहित्य में क्या हो रहा था। साहित्य में मैथिली शरण गुप्त कह रहे थे, भारत भवन में आर्य जन जिन की उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो हमारी जो असली व्याधि थी, उसको साहित्य में तोपने की कोशिश हो रही थी और हिंदी का जो पूरा का पूरा प्रगतिशील आंदोलन था, उसमें भी जाति के सवाल को एड्रेस करने वाले बहुत से लोग हुए। लेकिन हिंदी समाज में मीडिया का जो स्वरूप था, संस्थाओं का जो स्वरूप था, हर मोड़ पर उसको ओझल करने की कोशिशें हुई। मित्रों, मंडल का जो दौर है, 1990 का जो दशक है, उस दशक में भी आप देखिए साहित्य और राजनीति के अंतर संबंधों को, कैसे कैसे चीजें घटित हो रही थी और राजनीति उसको किस तरह से एड्रेस कर रही थी और साहित्य उसको किस तरह से एड्रेस कर रहा था। हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, विषयांतर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि 90 के दशक में आरक्षण के सवाल को लेकर रघुवीर सहाय से लेकर कमलेश्वर तक, ये सभी के सभी हिंदी के बहुत ही प्रगतिशील साहित्यकार माने जाते हैं। लेकिन इन तमाम लोगों ने आरक्षण का विरोध किया और जो एक अस्मितावादी राजनीति की जो धारा पनपी मंडल के बाद,
Sir, please. What happened? तो मैं कह रहा था कि मंडल के दौर को भी हम देखें तो हिंदी समाज की जो वैचारिकी है उस मंडल पीरियड को भी समाज को एक तोड़ने वाली घटना के दौर में चित्रित कर रही थी। सवाल यह है कि साहित्य को हम कहते हैं कि समाज का आईना होती है। सामाजिक जीवन में जो कुछ भी प्रतिफलित होता है उसकी अरुगूंज साहित्य में सुनाई पड़ती है। तो Sir, please unmute yourself. हेलो, Yeah, please, sir. आवाज आ रही है? Yes, yes. मित्रों, मैं कह रहा था मंडल 1990 के मंडल के दौर को याद कीजिए और 1900 मंडल के 90 के दौर के बाद इस देश में जो परिस्थिति पैदा हुई, मंडल और कमंडल के बाद जो एक गृह युद्ध की स्थिति में फंसे हुए देश की जो स्थिति सामने आई, किसी से छिपी हुई नहीं है। हम उत्तर भारत की बात करें तो यह मंडल से उपजी राजनीतिक शक्तियां ही थी जिन्होंने सांप्रदायिकता में फंसने से उत्तर भारत को रोक लिया। अगर बिहार में लालू प्रसाद नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह नहीं होते, काशीराम नहीं होते, तो कल्पना कीजिए यह कब का गुजरात बन चुका। लेकिन क्या मंडल के होने की वजह से समाज में जो एक सांप्रदायिक सौहार्द कायम हुआ, हमारे लेखक साहित्यकार इसके इस सकारात्मक को रख पाते हैं? मित्रों, आप देखेंगे कि मंडल पीरियड के दौर में हिंदी में जो उपन्यास लिखे गए, खासकर बिहार यूपी से, वे उस दौर में भी इन मंडलवादी शक्तियों को खलनायक के रूप में ही चित्रित करते हैं। तो कहने का मतलब यह कि भारतीय मीडिया और अकादमिक जगत में वर्षों से जो एक तरह का जातिवाद कायम है, वह कब दूर होगा? वह तब तक दूर नहीं होगा जब तक वे जातीय संकुचन से बाहर नहीं निकलेंगे। हम लोग नेपथ्य के नायक सीरीज के बारे में जब सोच रहे थे तो आजादी के आंदोलन से लेकर के मंडल पीरियड तक जाति के नाम पर जो एक किस्म का जो छद्म सेकुलरवाद रहा है, इस तरह की चीजें हम लोगों के जेहन में काम करती रही हैं। जाहिर है उनका मुकाबला हम उनके समानांतर नैरेटिव गढ़ के ही कर सकते हैं और हमारी यह कोशिश रही है कि आने वाले दिनों में, अभी तो आप भारत के सामाजिक जो सूत्रधार रहे हैं, समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले जो हमारे नायक रहे हैं, उनकी जीवनी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश यह भी होगी कि
भारत के सामाजिक कल्चर को रचने गढ़ने में यहाँ की संस्थाओं का जो योगदान रहा है, सत्य शोधक समाज से लेकर त्रिवेणी संघ तक, समाजवादी पार्टियों तक, उन संस्थाओं का भी इतिहास हम अपने पाठकों के सामने लाएं और उनके योगदान से सबक लेते हुए आगे आने वाले भविष्य को कोई दिशा दे पाए, इसकी पूरी कोशिश हमारी रहेगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हमारी यह भी कोशिश होगी कि अतीत के इन नायकों के अलावे हम अपने कुछ वर्तमान नायकों को भी खड़ा करेंगे। मसलन एक अजीब प्रवृत्ति मैं देखता हूं बहुजन पर्सपेक्टिव से काम करने वाले लोगों को, कि हमारे अतीत के जो नायक रहे हैं उनका महिमा मंडन तो हम बहुत करते हैं, लेकिन वर्तमान के सवालों पर मौन हो जाते हैं। आप देखिए, जयपाल सिंह मुंडा से लेकर शिबू सोरेन तक, क्या इमेज हमने गढ़ा है अपने नायकों का। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि अगर हम अपने वर्तमान नायक को खलनायकत्व से बाहर अगर नहीं निकाल सकते हैं, तो अतीत में जाने से हमारे समाज का भला नहीं होगा। हमारी कोशिश इस बात में झलकनी चाहिए, हमारी कोशिश इस ओर होनी चाहिए कि वर्तमान के प्लेटफॉर्म पर अतीत और भविष्य दोनों तरह की बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम कोई नैरेटिव गढ़ें। और अभी तो यह ओबीसी और ईबीसी के नायकों का सीरीज है। आने वाले दिनों में हम इसमें आदिवासी, दलित, एससी, एसटी सभी वर्गों के नायक को खड़ा करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि यह कारवां जो 100 के संकल्प के साथ आगे बढ़ी है वह मूर्त होगी। एक बात और कि इस अंक में हमारे जितने लेखक हैं वे सभी के सभी मध्यवर्गीय जातियों के ही हैं, कोई भी अपर कास्ट का नहीं है। एक स्टीरियोटाइप अवधारणा बनाई जाती है कि बहुजन समाज के अंदर लिखने पढ़ने का कल्चर नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। तो हम लोग के मन में यह बात कहीं ना कहीं थी कि इस अवधारणा को तोड़ना चाहिए और हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लेखक हैं। आप इस खंड में ही देखेंगे कि 30 से 40% लेखक ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार लिखा है और आपको खुशी होगी कि उन्होंने बहुत गहराई के साथ, बहुत गहरे कंसर्ट के साथ अपने नायकों के जीवन को, उनके जीवन संघर्ष को सामने लाया है। अब इसमें हम कितना सफल हुए हैं यह तो पाठक बताएंगे, लेकिन हमारी कोशिश रही है कि हरेक जीवनी के माध्यम से एक स्पष्ट दिशा निर्देश हमारे पाठकों तक पहुंचे और वे भी जो ज्ञान और धनार्जन की जो बनी बनाई परिपाटी है, भौतिक परिपाटी, उससे अलग हटकर समाज के लिए कुछ सोच सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आपने हमको इस चर्चा के लायक समझा। Thank you, sir. Thank you very much. It was really insightful and inspiring listening to you. Hopefully, you will bring more volumes, more books on different leaders
I think that is very important. And Arun Narayan sir is, one thing is clearly said, that there is a dominant notion among the upper caste that in Bahujan communities people do not read, people do not write. But this book clearly shows that all articles written by the Bahujan authors. That means they are reading and writing and producing the intellectual work. This is the spirit. So they can show to the world that they are more than capable to document their histories, experiences, leaders, and so on. Sir, it is really good to know that in coming volume also, many Bahujan writers, new scholars, young activists, senior writers will contribute to those volumes. So I thank you, sir, for your insightful presentation. Now we will go for discussion part. I request audience to unmute yourself, and you can pose your question or comment, express your opinion, or you can message. So whichever way you are comfortable. Anybody would you like to share? So there are many appreciations from the audience. Vijay Yadav. So he is a president of the Seva organization, and I request sir to share his opinion. थैंक यू चंद्रैया जी। आवाज जा रही है क्या? Yes sir, yes sir. यस, थैंक यू। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल कंसर्न। कमलेश जी ने सारी बातों को पुस्तक की बहुत अच्छी तरह से रखा, हम लोग के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और कोविड पीरियड में ही इसकी तैयारी होने लगी थी। तो जैसा कि ये पुस्तक जो है कलकत्ता फाउंडेशन और पॉल फाउंडेशन का जो एक हिस्सा है उसके द्वारा प्रकाशित की गई है, और सेवा की भी भागीदारी है। तो सेवा आपके उत्तर प्रदेश की सोशलिस्ट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में काम करती है। तो हम लोग भी उसी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑपरेस्ट का, इल बिहेवियर का, माने जो चलता रहा है सदियों से, युगों से बहुजनों के खिलाफ। तो ये पुस्तक एक प्रयास है उन सब चीज़ों की ओर जहाँ से हम एक अच्छे समाज की ओर बढ़ सकेंगे। तो संपादक जी ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि हमारी भागीदारी सिर्फ 10% ही है। हम बहुजन हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन इन इज ओनली 10%। और हिस्ट्री का पुनर्लेखन है, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो उस दिशा में हम लोग कितने कामयाब हो पाएंगे ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन सेवा एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत के अन्य देशों में भी है। तो हम लोगों के विचार था कि चूंकि इनकी विचार कलकत्ता फाउंडेशन या पॉल फाउंडेशन का
this is similar thought which we profess also. तो हम लोगों ने सहयोग किया और आगे भी इसके माध्यम से सहयोग करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेन उद्देश्य, मेन पर्पस हमारा वही है, पार्टिसिपेशन इन एवरी स्फीयर, cultural, education, political, in every sphere we want our participation according to our census, according to our हमारी जो जनसंख्या के आधार पर है उसके आधार। तो कहाँ तक हम लोग सक्सेस हो पाते हैं इस पर तो आगे समय बताएगा, लेकिन हम कमिंग जनरेशन, our history or our book is addressed to mainly to coming generation. They should know or they must know our नेपथ्य के नायक, उनको जाने और उनसे प्रेरणा लें, और समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं वो कोई विकल्प सुझाएंगे, कोई विकल्प बताएंगे कि कैसे हमारी भागीदारी बने, कैसे हमारी पार्टिसिपेशन हो। कहे कि आज हमारा समाज जो है ओबीसी है और बहुसंख्यक वर्ग जो है उनका पार्टिसिपेशन है उसमें, लेकिन उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं जहां करना चाहिए। तो हम लोग ने एक चिंगारी लगाने का प्रयास किया है सेवा विहार इस फाउंडेशन से और अरुण नारायण जी से और अन्य लोगों से, और बहुत खुशी हुई चंद्रैया साहब आपकी भी बातों को जान करके और सुन करके। पहले से भी हम लोगों का था कि इसका इंग्लिश वर्जन भी हम लोग निकालेंगे और अदर इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस में भी हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे, और कोई लोकल हम लोग से छूट जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पर भी जो ऐसे नेपथ्य के नायक हैं तो उनका भी हम लोग जानना चाहेंगे और पूरा इंडिया जानना चाहे तो अच्छा होगा। एक अच्छा सार्थक प्रयास है। और आज चंद्रैया जी आपने तो पैन इंडिया ही नहीं, लगता है कि पैन ग्लोबल इसको रिले कर दिया, तो that is all beautiful and we are hopeful and हम लोग चाहते हैं कि कमेंट्स आए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग और अगले अंक में और सुधार करेंगे जैसा कि अरुण नारायण जी ने कहा है। और हम चाहेंगे कि वो हमारे संयोजक जो है राकेश यादव जी, तो वो और कुछ अपना इस संबंध में प्रस्ताव रखना चाहेंगे। थैंक यू चंद्रैया जी एंड थैंक यू एवरीबody। थैंक्स। Thank you sir, thank you very much. It was really great to know your work and your teamwork and seva organization contribution, and the seva organization and other organization continue to help in producing this kind of books, because these are the books which are produced by the committed people, committed to the social transformation. See, generally what happens is we expect that institutions, universities will bring a very good books. But after 70 years of independent India, why we don't see in the universities these kind of books? Because that shows that institutions largely excluded the majority of the literature. So that's where the efforts outside the institutions become very important. So therefore, new generation of scholars, PhD scholars, researchers in the universities from the Bahujan communities have to take up the research on these personalities. So they can do MPhil and PhD. If it is in literature, they can do literature, because Bhikhari Thakur is a well-known, is a literary writer. He has to known to the world. You are right. We have to speak at global level. These figures, all the Bahujan thinkers has to be known to the world, not only in India. So it is only possible when we translate in English, so that across globe people will come to know. So thank you sir, thank you very much. So I request other person to speak, and somebody was making a request. Rakesh Yadav. Yes sir, please.
बहुत बहुत धन्यवाद सर, गोपानी सर. It's nice trying for review of our नेपथ्य के नायक. जैसा कि कमलेश सर और अरुण नारायण सर और अभी तुरंत हमारे प्रांतीय अध्यक्ष इस पुस्तक को क्यों लाया गया. दरअसल कोरोना काल में खाली बैठे संगठन के विस्तार की योजनाएं दिमाग में थी ही, लेकिन उसी समय हम देख पा रहे थे दिल्ली से मुंबई से पैदल चलते आ रहे सैकड़ों हजारों मजदूरों को, और मन में एक पीड़ा सी उठ रही थी और एक गजब तरीके का मन में व्यथा था कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे. रूप धारण कर चुकी थी कि चाह कर भी हम इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे. तो हमें लगा कि जब आज हम जैसे लोगों के मन में इनको देख के इतनी पीड़ा आ रही है, जबकि सारी सुख सुविधाएं इस संसार में आम मनुष्यों के जीने के लिए लाई गई है, लेकिन सामाजिक रूप से जो भेदभाव की स्थिति पूरे विश्व में है, उन स्थितियों से कहीं ज्यादा भयावह स्थिति हमारे इस देश में है. भारत के बाहर की जो परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक संरचनाएं हैं, वहां हमें लगता है कि नस्लीय भेद है, लेकिन हमारे यहाँ 6743 जातियों को जो टुकड़ों में किया गया है, तो कहीं ना कहीं हम 7000 प्रकार के कष्टों को भोगते हैं. तो आधुनिक काल के भारत निर्माण में जिन नायकों ने इस पीड़ा को समझा होगा, तब की क्या स्थिति रही होगी हमारे समाज में, और किस तरह से उनके मन में जो पीड़ा उठी होगी अपने आसपास के लोगों के वेदनाओं को देखकर, कष्टों को देखकर. तो उस ख्याल से हमें लगा कि आज का जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो 1.5 GB 2 GB प्रतिदिन मुफ्त इंटरनेट में वैसे कामों में अपना समय बर्बाद कर रही है जिस काम से इस देश के निर्माण में तनिक भी योगदान नहीं हो सकता है, तो लगा कि क्यों ना बिल्कुल सरल भाषा में हम वैसे नायकों को लाएं जिसके बारे में हमारा आज का युवा पीढ़ी लगभग नहीं जानता है. अगर हम अपने बहुजन समाज की बात करें, जो इस देश के 85% आबादी है, पहले ही हम शिक्षा के रूप में काफी कमजोर रहे हैं. हमारे यहाँ 85% में अगर शिक्षा का स्तर देखा जाए तो बमुश्किल 8-10% भी आबादी हम ग्रेजुएट नहीं है, और बाकी आप लोग के जैसे पीएचडी स्कॉलर तो लगभग उंगलियों पे गिनने लायक होगी. उस समाज में जो नायकों की कमी, जबकि हमारे नायक कम नहीं है, स्वतंत्रता आंदोलन से लेके विभिन्न तरह के सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हमारे सभी नायकों ने भाग लिया है. लेकिन वही बात है कि शेर की कहानी शेर के संतानों द्वारा लिखी गई है और हमें बिल्कुल बिसरा दिया गया है. इस समय सेवा के सभी साथियों से हमने सलाह मशवरा किया कि क्यों ना हम अपने नायकों को पुनर्जीवित करें. फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, ललई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, ये थोड़े फेमस नायक हो चुके थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका समाज में योगदान इतना ज्यादा था कि गाहे बगाहे लोग इन्हें जानने लगे थे. लेकिन वैसे नायक जो वाकई में हमारे रियल हीरो रहे हैं, जैसे समस्तीपुर के शिवनंदन पाल उर्फ बच्चन भेड़िहर, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सीने पे गोली खाते हैं, और वैसे नायक जिनके मरने के बाद स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मिलने वाला पेंशन भी उनके परिवार को नसीब नहीं हो रहा है. अब भला इससे दुखदाई क्या होगा कि समाज के लिए लड़ने वाला, देश के लिए जान न्योछावर करने वाला नायक के बाद की पीढ़ी इतनी गुमनाम सी है, इतनी कष्टजनक है. तो हमारा प्रयास यही था कि हम ओबीसी समाज के नायकों को पहले लाए, क्योंकि दलित साहित्य के नाम पे हमारे दलित नायकों पे काफी कुछ लिखा जा चुका था, और 65% की हमारी वर्तमान में आबादी है. 1931 की जनगणना के अनुसार हम 52% शुरू से इस देश में रहे हैं. तो 52% के अपने नायकों की कहीं कोई संलिप्तता दिख नहीं रही थी.
तो ये प्रयास था हमारे टीम के साथियों के द्वारा, और इसमें सबसे ज्यादा अगर किन्हीं का योगदान देखा जाए तो हमारे एक साथी है मनीष रंजन। सबसे पहले 8 जून को उनके साथ हमारी मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने ही हमें नाम सुझाया कि इस काम को बखूबी अंजाम देंगे युवा आलोचक, युवा साहित्यकार अरुण नारायण भाई। चूंकि अरुण नारायण भाई भी बहुजन समाज से आते हैं और हमारी संस्था भी बहुजन समाज की संस्था है, तो हमने उनसे आग्रह किया। उनको ये प्रस्तावना काफी अच्छा लगा, क्योंकि पहले भी कई नायकों पे उनके काम हो चुके हैं, नक्षत्र मालाकार पे उनका काफी अच्छा काम है, इस तरह से और भी कई नायकों पे, तो हमने सूचीबद्ध करना शुरू किया। तो 4-5 दिन के अंदर में ही देश के अन्य साथियों जैसे विनोद जी हो गए, धर्मवीर गगन हो गया, इन सारे लोगों से संपर्क करने के बाद 70-80 नाम विदिन वीक हमारे पास आ गया और लगभग एक सप्ताह के अंदर 50 से अधिक नायकों पे आलेख भी आ गए। तो ये एक प्रयास रहा है हम वैसे युवाओं के लिए जो बिल्कुल अपने अपने पूर्वजों को नहीं जान रहे हैं। आज भी, अब रिसेंट सिवान की बात है, सिवान में हम इस पुस्तक के लोकार्पण में गए, वैसे जिला वाइज हम इस पुस्तक के लोकार्पण में जा रहे हैं, तो सिवान में जाते तो वहां मंच संचालन उपेंद्र जी कर रहे होते हैं और बात बात पे वो पाल बाल लाल का नाम ले रहे होते हैं और मालवीय का उदाहरण दे रहे होते हैं। अब चूंकि मंचासीन होने के कारण हम उन्हें बता भी नहीं पा रहे थे कि आप बार बार जो मालवीय का नाम ले रहे हैं कि ये मालवीय के समान काम कर रहे हैं, मालवीय के समान। तो अंततः उन्हें बताना पड़ा कि इस देश में 15 मई 1848 को सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले ने विद्यालय खोल दिए थे हमारे महिलाओं के लिए, जब पुरुषों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। और आप आज के पंडित मदन मोहन मालवीय का उदाहरण हमारे बहुजन समाज के लोगों को दे रहे हैं, तो उन्हें इस गलती का एहसास हुआ। तो जब शिक्षक समाज के लोग हमारे फूले साहब को नहीं जान रहे, माता सावित्रीबाई फूले को नहीं जान रहे, तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में हैं और उधार के नायकों के सहारे अपना जो है काम चला रहे हैं। तो ये सेवा बिहार के सभी साथियों, खासकर हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सेवा बिहार के उपाध्यक्ष राम रविंद्र सर, हमारे रंजन गुप्ता सर, इन सारे साथियों के सहयोग से जो निकल के आया, मधुबनी के राम नरेश सर, दरभंगा के सत्यनारायण सर, इन सारे साथियों ने जो मेहनत की, उसके बाद ये पहला खंड आ पाया। हमें लगता है कि इस खंड में कुछ त्रुटियां रह गई है। हमारे कमलेश वर्मा सर काफी सुंदर तरीके से उन त्रुटियों की ओर ध्यान भी आकर्षित कराया है। और वाकई में 1000 प्रति 15 दिनों के अंदर में अपने लोगों के हाथों में भेज पाना भी एक मजेदार काम लगा मुझे। इतनी जल्दी 1000 प्रति का निकल जाना और उसके बाद लगातार इसका स्टॉक में कमी ही, दूसरा 1000 प्रति भी हमारे पास आ चुका है, जिसमें से मात्र 300-350 प्रति ही बच पा रही है। तीसरा 1000 का भी ऑर्डर ऑलरेडी प्रेस को जा चुका है। तो हम बता नहीं सकते कि हमारे लोगों ने कितना सराहा है नेपथ्य के नायक को। और थोड़ा मन में तो है कसक कि दक्षिण भारत के हमारे वैसे साथी जो हिंदी नहीं जानते हैं, उनके पास तक हमारे ये अनसंग हीरोज पहुंच नहीं पा रहे। तो इस पे आप जैसे गोपानी साहब, आप जैसे साथियों से ये भरपूर सहयोग लेने का कोशिश करेंगे। विनोद भाई इसमें लग गए हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, हमारे उपाध्यक्ष साहब हैं, कि इसका इंग्लिश वर्जन जितना जल्दी हो, अगर हिंदी वर्जन का सेकेंड एडिशन हम मार्च में ला रहे हैं, तो प्रयास करेंगे कि मार्च तक इसका इंग्लिश वर्जन का फर्स्ट एडिशन जो खंड 1 है, इसका इंग्लिश वर्जन हम लोग ले आए। प्रयास तो मल्टी लैंग्वेज में लाने का है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टास्क हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी हम इन 25 आलेखों का आसानी से कर पाए, इसका प्रयास में हम लोग लग गए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपानी साहब। Thank you, sir. Thank you very much. Vinod, are you there in the? Are you there? Yes, sir. Yes, I'm here. Yeah. Would you like to share? Yeah, sir. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर, कमलेश वर्मा सर और टीम के सभी साथी को, गोपनी सर को बहुत स्पेशली धन्यवाद कि उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया और पान इंडिया इसको पहुंचाया। सारी बातें तो कही जा चुकी हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं
कि जो भी राइटर्स ऑफ साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया are listening this debate are and keen to write about our local Bahujan leaders. They are invited to me. They were invited by me. Write in any language. We are trying to translate it into Hindi, English, and as much as possible. मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको इंग्लिश में लाऊंगा, जल्दी ही हम प्रयास कर रहे हैं। और लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि जो लिखना चाह रहे हैं, चाहे वो दक्षिण भारत के हों या उत्तर भारत के हों या पश्चिमी भारत के हों या पूर्वी भारत के हों, वो जिस भी लैंग्वेज में अपने लोकल लीडर्स जो बहुजन के लिए वर्क किए हुए हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखना ही सबसे जरूरी है, लैंग्वेज तो बाद में सिलेक्ट की जाएगी कि किस लैंग्वेज में किसको छापा जाना है। बस सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। Thank you, Vinod. Vinod is very active and we keep talking and discussing, and it is really important what Vinod was saying, that you write in whichever language you are comfortable on any leader from your own local area. Then it will be translated to Hindi, English. So the idea is it has to be written, whether it is in Telugu, Kannada, Malayalam, or whichever language you are comfortable, you write down in your own language and send it to them, and they will translate in English, Hindi, so that it will reach at all India level. So the point is to documenting our own leaders, their contribution, their literature is very, very important. I would say that thousands of the people will come once you begin to explore. In each state 100 people will there. So in that way there is a long way to go, and this volume really inspire us in coming volumes also. Anybody would like to share anything? Yes. Santosh, your voice is little bit. Hello. Okay. You are getting my voice properly? Your voice is not clear. What Mr. Arun, and thank you for this, and this initiative is very. Okay. As Santosh, your voice is not clear, and yes, Josna madam in the meeting was suggesting that there should be a effort also in creating a introducing our leaders to the children's. Therefore, creating children's books also very important. So there is also one suggestion, and Sampath sir was appreciating the discussion and speakers. Santosh is also appreciating and congratulating the editor. Anybody? Jai Bhim, sir. Yeah, please. Jai Bhim, everybody. I already chatted in the chat box about children's books and all. So that is my simple suggestion. And other thing I want to point out is let us include from children also. Don't let the children are very small.
if we are holding these Zoom meetings and all, any of the children can come and sing songs or read out a passage, and then they can inaugurate, like they can start the program with children, so that they will also from the tender age come to know about our great persons and all. So this is my small suggestion, because from tender age only, if we cultivate the habit of reading about great people, then it will become a habit for them. And wherever I especially teach school children social studies and all. So what happens is, in that social studies books, no great leaders from Bahujan Samaj are there in the books, in the textbooks, CBSE or prescribed books, ICSE also. So let us all fight for that, including very famous, even Jyotibai Phule's version is also not there, Savitribai Phule poems are not there. So all this, let us try in that field also. Agitate ourselves to include such. And I have seen one book, it is called Supplementary Reader, where it was one lesson was on Dr. Babasaheb Ambedkar, and it was marked by the teacher's cross, 3 cross. That means it is not important. So what they're training in the schools is, they're training only important leaders, like only some people, and then keeping all the cross. All these things are very minute things, but we have to go to the school books, we have to visit schools and see what type of teaching is going on there. I think we have right for that also. And we have to send it, I don't know how to send and all, for NCERT and all, to be all these leaders' life history also to be included in social studies. And even in literature also they can include, both in Hindi literature and as well as in English literature. So this is my small suggestion, because all of our who attending this Zoom meeting are of highly intellectual, and I think they can find out the way. Simple things also we have to do. That is my suggestion. Okay, thank you. Thanks, madam. Thanks very much. Your suggestions are very, very important, because in our universities, schools, whether it is central government schools or state government schools, you don't find these leaders' history, their life stories, because our own people now documenting. There is a long way to go and fight to include these leaders' contributions into school text, because whatever text, schools text and university text, all they are all taught by they are the stories written by the upper layer of people, and they will tell us their stories, their experiences, but the majority people's stories, life stories are not included, and there is a need to include, and for that we have to demand. Now I request, yeah, please, sir. You have raised a Sir, question. Yeah. I want to express something. Myself, Yeah, R.K. Gupta. Are you sir. listening, me, sir? Yes, You are yes. listening? Yes. Respected Gopani ji, chairman of this committee meeting, Rakesh Yadav, and editor of this book, Narayan Sahab. First of all, we welcome you such type of the meeting organized by the team. Actually, this book is in itself a revolution. And if you prepare it wisely, it should be converted into booklets for the children. A small, suppose the story is in 4 pages, it should come into a booklet of 1 or 2 pages, so that the children can easily grasp the contents. Not only booklet, it is not only books, it is a social revolution in itself. That is why I am telling, and the effort. Sir. Hello?
Hello. Am I audible? Hello. Network Hello. problem. There is some network problem. So sir was appreciating that this bringing book itself is a big revolution. It has to be each personality has to be converted into small booklets so that children can also read, and it will be more comfortable for these children, because there is a need of developing a children's book with photos, small, uh, using different kind of methods to introduce our leaders. Because generally in the childhood itself, if you able to introduce them, I think it will have a great impact. That is the suggestion, sir. Everybody has to pay attention towards that suggestion. Yeah. And today I would like to inform you all, I think you may be knowing that today great thinker Mata Prasad ji, he was passed away today, but he is the one who wrote continuously and contributed a lot to the Bahujan Samaj. So his contribution, his sacrifice, his thinking will always inspire all. So we will continue his vision. We will take inspiration from his sacrifice and contribution. He wrote many things, but he produced two important volumes on Bahujan leaders across India, published by Samyak Prakashan. So if you read those two volumes, I think you will find hundreds of the leaders' stories, life stories. So his contribution is enormous, and Santosh was making us to remind it. So anybody? Sir, are you able to listen me, sir? Yes. Are you able to listen me? Yes. My suggestion that where the people are more vibrant, what I observed during my job and visit to different states, I felt that the people of Tamil Nadu, Maharashtra, Uttar Pradesh and Bihar are more vibrant. So that I suggest my team that we should concentrate over minimum 4 or 5 states. And then accordingly we have to move, because if you start from all over India throughout distributing the books, it will not be beneficial, because at least the vibrant people should go the book and booklets first, and targeting this we should work over all these things. And second thing, that it should be our one of the suggestion is coming that some write in any language, that translation is not a problem. But in North India, we have already started distributing. But for South India, it must be in English and in Tamil Nadu and even Marathi. So it's my suggestion that priority should be given for Tamil Nadu, Tamil language and English, as well as English and even Marathi. Because we North Indian people, we are already distributed, and the team, Rajesh ji, Narayan sir, and Pal sir, already they are very active. And I congratulate on behalf of the team, and even Gopani sir, the guidance what you are giving. And in our Karunanidhi is fighting there in Tamil Nadu and Hyderabad universities to establish the OBC reservation. We should give solidity to that moment, because in pieces we cannot win the race. So my suggestion that unitedly, wherever the fight is going on, our team should solidarity, unitedly, we have to give support them morally or physically or by thinking. That's all. So I am finishing my word with this, that the beautiful meeting was organized by our team and in direction of our Gopani Sahab. Thank you, sir, and good evening once again. Okay, thanks. Thank you, sir. Thank you very much. There are two members who are raising their hands. Bejanki Prabhakarachari.
Sir, please, you can unmute yourself and speak. Okay. సార్ నమస్తే. సార్ నేను తెలుగులో మాట్లాడొచ్చా? మాట్లాడండి సార్. అందరికీ నమస్కారం. సార్ ఇవాళ పుస్తకం ఏదైతే పరిచయం చేశారో అది చాలా మంచి పుస్తకం అనిపిస్తూ ఉంది. సార్ అది తెలుగులో కూడా అనువదిస్తే బాగుంటుంది. సార్ ఒకటి, ఇంకోటి మన తెలుగు ప్రాంతంలో ఒకటి చాగలేలమ్మ, రెండోది సర్వాయి పాపన్నని కూడా మనం జాతీయంగా గుర్తు చేయాలి ఒకటి. రెండొకటి, ఇంకోటి తమిళనాడు ప్రాంతం, మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గానాల రామూర్తి అని ఒక జస్టిస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ పనిచేసిండు. అతన్ని కూడా మనం చరిత్రలో తీసుకోవాలి. తర్వాత నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, వాస్తవానికి మన దేశంలో 52% ఉన్నటువంటి బీసీలం ఎదగకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే, ప్రధానంగా మన మధ్య ఐక్యత ఏర్పడకపోవడం అనేది ఒకటి. అది ఐక్యత ఓటు బ్యాంకింగ్ గా మారకపోవడం అనేది ఒక లోపం అని నేను భావిస్తాను. అయితే దీనికి ప్రయత్నం ఏంటంటే, ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ నుంచే మన బీసీల ఐక్యతకు సంబంధించినటువంటి భావజాలాన్ని ఒక భావజాల వ్యాప్తిగా తీసుకుంటేనే ఒక కొంతకాలానికైనా మనం విజయం సాధిస్తామని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నా. ధన్యవాదాలు. సార్ suggesting that this book has to be translated in Telugu also. So he's suggesting, and he's also suggesting that there should be a unity among the Bhujan communities to to achieve our goals, not only in the political sense, it has to be in a cultural sense also. He is also suggesting that in Telugu region there are important leaders who contributed a lot, like Sarvai Papanna, Gautu Lachanna. So even there are other leaders who have contributed a lot, so they can be also included in coming volumes. Ganala Ramurthy. So from Tamil Nadu. So there are number of leaders historically contributed to the Bhujan communities. And anybody, I think somebody was raising their hands. Anybody? Anybody wants to? Sampath sir, would you like to speak? Anybody? Yadav Bihar, I want to speak. Book is available on Amazon. You can directly purchase from Amazon. The price of the book is 250 rupees. If there are no questions, I think shall we conclude? Yeah. Am I here? Sir, please. I'm Sampath Kumar. Sir, please. Yeah, dear, so nice of you. It is an excellent session organized by you, and also the speaker was very highly illuminating. Yeah. And the pictorial view of all our resources as the leaders, as the forefathers, gives a lot of strength actually to the society. Yeah. And the two things that you were telling about, written by the martyr of today, Satya Prasad ji, is it? Mata Prasad. Mata Prasad ji. Yeah. So if those two books are given widely and in a different kinds of periodical basis on the digital social communication, yeah, by our people, yeah, and all such initiatives must be started by our people. Yeah. Everywhere.
to take it to the present day youngsters, college students. So I request those two books, the availability, the details of the availability of those two books. I am very curious. Yeah. Why? Because I am enthusiastic to spread it as widely as possible in my ability. Sure, sir. So I So will. nice of you. Those books also available on online from Samyak Prakashan. So if possible, I will try to send the details so that everybody will come to know. Sir, So nice of Sampath you. sir, I will try to share with you. And are they in English or Hindi only? Those two books. They are in Hindi. Oh, okay. They are in Hindi, but at least you will come to know names, basic details. True. We will plan in such a way that it is communicated. Something of it is communicated. Okay. Somebody was raising their hands. Maybe. Anybody? Yes. Yeah. Yes, dear participants. First of all, I am thanking Chandraiah sir and all participants in this very beautiful meeting. Actually, I want to share my view. Yeah. That this is a very beautiful thing to organize, and even before in touch with Mr. Rakesh Yadav, I was even not know about the Periyar Sahab. When I am a practicing advocate at Patna High Court, I even don't know about those people who have done many things for our society. Although now I am here to know about that thing, and I am very happy to know that I am audible. Yes. By connecting all people who are doing very much and very good thing for our OBC society. So, and the latest publication of the Nepathy Ke Nayak Part 1 is an inspiration to me, and I came to know many things about these books. So kindly, sir, and your announcement about the many things, the many publication in this book. This book in many languages is very good, and through this publication, it will be all people who don't know about our Nepathy Ke Nayak will know about those things. And I will do whatever I can do for our society and for our Seva Vihar and OBC community. That's all. Thank you very much. Anybody? I think we can conclude. Sir Kamalesh sir, are you there? So finally, it was really a productive discussion on this book, and many suggestions, many valuable information, insights we had discussed. And on behalf of Satya Shodhak, I thank personally
Professor Kamalesh Varma sir for his valuable insights and a very systematic introduction of the book and his suggestions. I also thankful to the Arun Narayana sir for editor of the book for spending his time and presenting as how this book came to publication. And this discussion really brings us two things. One, engaging with our leaders, taking their inspiration and carrying this book to the everyone who can read, who can learn from this leadership. And this book also demands us to document our local leaders so that it will be documented, it will be forwarded to the next generation of people. And this is the this is a kind of work which is required throughout India, in every state. So with this spirit, once again we congratulate the editor and the writers, authors, and we also looking forward to read coming volumes, and we will keep in touch. And thank you for attending the Zoom meeting, and also thank all the participants on Facebook who are watching across globe, whoever watching this discussion, and we are recording it. Later we will upload to YouTube so that people can watch it. So with this, I thank everyone. Thank you very much.